students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. So students, now we will start our new chapter, chapter 10, Water is our life. So in this chapter, we will study about water. So what is the composition of water that we should drink? What is the conditions of the safe and clean water that we should drink? Now we should study in this chapter about water pollution also. Now students, look at the some learning points that we will discuss in our chapter. Sources of water, saving of water and drinking water. Now students, get ready for the exercise. Write the name of each activity for which water is being used. Now you look at the images and identify which activity should perform in this image. Now your first image is shown the activity of bathing. Now write bathing here. Now, see at the second image, which activity is shown here? Drinking of water, drinking. Now, look at the third image. In the third image, you shown which activity? Cooking. Now, look at the last image. You shown that in the washing clothes also need water. So, washing. So, students, let's begin the chapter. We need water to live. Life on earth is not possible without water. All living beings depend on water for their survival. We need water for drinking, having a bath, cooking, washing, etc. Plants need water to make food. Animals need water for drinking and bathing. You all know that water is very essential to survive on the planet Earth. So we should use to drink a clean and safe water. बच्चों जो लाइफ है अर्थ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर हमारे अर्थ प्लानट पे वाटर नहीं अवेलेबल होगा. So you all know that all living beings, including plants and all animals, also need water to survive on this planet Earth. प्लांट्स क्या करते हैं पानी से? वो ग्रो करते हैं. उन्हें ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है. एनिमल्स किस तरीके से यूज करते हैं? वो ड्रिंक करने के लिए या बाथिंग करने के लिए वाटर का यूज करते हैं. Now students, look at the activities that you show that water is used in different activities. First one is drinking, पानी पीने के लिए. बाथिंग, नहाने के लिए. कुकिंग, खाना पकाने के लिए. वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए. एंड लास्ट वन इज स्विमिंग. So students, now start with our first topic, sources of water. We all need water. Plants, animals and humans cannot exist without water. The main source of water on earth is rain. Rain falls from the clouds to the ground. It fills up water bodies like ponds, lakes, streams, waterfalls, seas, rivers and oceans. These water bodies are called the natural sources of water. आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ पे पानी कहाँ से आता है. मेन सोर्स क्या है हमारे अर्थ पे पानी की अवेलेबिलिटी का? वो है रेन. तो जो बारिश होती है वही क्या बारिश का पानी है हमारे कुछ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में कलेक्ट हो जाता है, जस्ट लाइक इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस. और कुछ हमारा जो वाटर होता है रेन वाटर वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है जिसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं. इसी पानी को हम यूज करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज किया जाता है. नाउ लुक एट द इमेज ऑफ सम वाटर बॉडीज दैट आर नेचुरल सोर्सेज जो बारिश के पानी से फिल अप हो जाते हैं. रिवर, नदियां, लेक, पॉन्ड, तालाब एंड स्ट्रीम. नाउ some of the rain water seeps into the ground. This is called ground water. कुछ जो बारिश का पानी धरती के अंदर चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं. We dig wells to get water that seeps into the ground. We also use hand pumps to get this water. तो स्टूडेंट्स, जो बारिश का पानी हमारा जमीन के अंदर चला जाता है उसे निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वेल्स यानी कुएं खोदते हैं, डिगअप करते हैं और उससे ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है. We build canals, dams, water tanks to store water. बच्चों, हम कुछ बारिश के पानी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी स्टोर करके रखते हैं इन फ्यूचर पर्पसेस. These are man-made sources of water. बच्चों, जब हम बारिश के पानी को
डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल सोर्सेस में कलेक्ट करके रखते हैं जो खुद के बनाए हुए होते हैं, उन्हें मैनमेड सोर्सेज ऑफ वाटर कहते हैं। जस्ट लाइक इमेजेस में वेल, सो स्टूडेंट्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप एंड डैम। बच्चों इसमें क्या होता है, ये हमारे मैनमेड सोर्सेज होते हैं जो हमने बनाए हैं, बल्कि जो रिवर्स, लेक, सीज, ओशन से ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है। नाउ apart from these sources, we get water from high mountains that are covered with snow and ice. The snow and ice melt into water. During the summer season, this water flows into the streams and rivers. तो स्टूडेंट्स ये सोर्सेस के अलावा, जो हमारी रेन के अलावा हमारा सेकेंड सोर्स कहाँ से पता चला, जो पहाड़ों पे बर्फ होती है, समर सीजन में जब वो पिघलनी स्टार्ट होती है, मेल्ट होने स्टार्ट होती है, फिर वो पानी के फॉर्म में हमारे रिवर्स में, सीज में, स्ट्रीम्स में फिलअप हो जाती है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा सेकेंड सोर्स होता है। A lot of water is present in seas and oceans. जो बहुत सारा अमाउंट का हमारा वाटर है वो समुद्र में है, बट इट कंटेन्स सॉल्ट। बच्चों आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, बिकॉज उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। So it is not fit for drinking or other purposes. इसलिए हम उस पानी को नहीं पी सकते। We should drink clean water. हम सिर्फ साफ पानी पी सकते हैं। The water found in rivers, lakes, ponds and wells is not fit for drinking. It has germs, sand, worms and dirt. बच्चों जो हमारा सारा पानी है सारा प्यूरिफाई होके आता है, उसके बाद ही हम पी सकते हैं। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, जो ये सारे पानी होते हैं ये हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होते। पहले इन्हें प्योर किया जाता है, फिर हमारे तक पहुंचता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ सी एंड ओशन वाटर। Now look at the knowing fact. The rainwater that gets collected deep underground the earth is called the underground water. The water is taken out through hand pumps, tubewells and wells. आप सभी ने समझा, जो पानी हमारा जमीन के अंदर होता है उसे हम वेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू निकालते हैं। From different sources, water is transported to water treatment plant. आपको पता है जो मेन सोर्स है पानी का, जहाँ से पानी आता है वहां से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पे पानी को ट्रीट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। द वाटर इज क्लीन टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये वाटर आप ट्रीटमेंट प्लांट की आपको इमेज शो करोगे, यहाँ पे हमारा सारे पानी को ट्रीट किया जाता है, प्योर वाटर को प्योर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है आपके हाउसेज तक। Now, students, that this treated water is then transported to underground or overhead water tanks for storage. कुछ पानी को हम कहाँ सप्लाई कर देते हैं, मैन मेड स्टोरेज टैंक्स में सप्लाई कर देते हैं। फ्रॉम हियर द वाटर इज सेंट टू द हाउसेज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी। फिर उन टैंक्स से, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनसे सप्लाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में वो वाटर। ईच होम हैज अ टैंक फॉर वाटर स्टोरेज। आप देखते होंगे हर एक घर के अंदर एक टैंक होता है, जो क्या होता है, जिसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। द वाटर फ्रॉम दिस टैंक इज यूज विद द हेल्प ऑफ टैप। और फिर वो जो वाटर टैंक है उसमें से आपके घरों में डिफरेंट डिफरेंट किचन के पर्पस के लिए या क्लोथ को वॉश करने के पर्पस के लिए टैप से पानी उसमें से निकाला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ड्रिंकिंग वाटर। द वाटर वी ड्रिंक शुड बी क्लीन एंड जर्म फ्री। बच्चों जो पानी हम पीते हैं वो क्लीन, साफ होना चाहिए और जर्म फ्री होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन वे टू क्लीन वाटर इज बॉइलिंग। बच्चों पानी को साफ करने का एक बहुत अच्छा वे होता है बॉइलिंग, यानी पानी को उबाल लिया जाए। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बच्चों अगर हम पानी को उबाल के पीते हैं तो इससे जो उसके जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और वो हमारे लिए सेफ हो जाता है। वी कैन ऑल्सो क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर एंड वाटर प्योरीफायर। कई कई घरों में बच्चों वाटर फिल्टर का यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफायर का यूज किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड क्लोज कंटेनर। हमें हमेशा पानी को कहाँ पे स्टोर करके रखना चाहिए, एक साफ बर्तन में, या जो क्लोज कंटेनर होते हैं, जो ढके हुए बर्तन होते हैं वो हमारे जर्म फ्री होते हैं, वहां पे अपने अपने हमें वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। Now students, let's see the images how we store our water for drinking purpose. In after boiling the water, using water filter, water is stored in closed container. Now your next topic is saving water. How can we save water for being waste? Water is very precious. We must not waste it.
When it rains, we should save the rainwater in buckets, drums, or tanks. This saved rainwater can be used for washing clothes or utensils, watering plants, etc. We should not let taps keep running while brushing our teeth. So we should turn them off. Now, तो आप सभी को पता है वाटर जो है बहुत प्रीशियस होता है और बहुत कम वाटर अमाउंट हमारे अर्थ प्लैनेट पे अवेलेबल है। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वी शुड सेव वाटर। तो हम कैसे पानी को बचा सकते हैं? बच्चों, कभी भी जब बारिश होती है तो हम उसके नीचे बकेट लगा के उसमें रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर दी अदर पर्पसेस लाइक क्लीनिंग दी फ्लोर और वॉशिंग दी क्लोथ्स। नाउ सेकेंड हम क्या कर सकते हैं? यूज बारिश के पानी को यूज कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए। वी शुड नॉट लेट टैप्स कीप रनिंग। हमें कभी भी जो जब आप ब्रश कर रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं आपको टैप्स को खुला नहीं रखना है, इससे आपका लॉट्स ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। नाउ लुक एट द इमेजेस। टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज, इट्स अ गुड हैबिट आल्सो। सेव रेन वाटर इन बकेट्स एंड टैंक्स फॉर फ्यूचर पर्पसेस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द knowing facts. The human blood has 83% of water, brain has 75% of water, bones have 25% of water. आपको पता है कि हमारे ह्यूमन ब्लड में 83% वाटर होता है, ब्रेन हमारे दिमाग में 75% ऑफ वाटर होता है, बोन्स यानी हड्डियों में 25% ऑफ वाटर होता है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मोरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड कंजर्व इट। हमें इसे बचा के रखना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। लाइफ बच्चों पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी अर्थ पे अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। हमारा मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन, बारिश। द वाटर वी ड्रिंक शुड बी क्लीन एंड जर्म फ्री। हम कौन सा पानी पी सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए? कौन सा पानी सही है? जो क्लीन होता है और जर्म फ्री होता है। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.